Hello students, welcome to my next video lecture, and in this video lecture we are going to discuss some equations and we will discuss some more examples based on concentration terms as well as these equations which we are going to study, that is molarity equation and normality equation. First of all, molarity equation. Okay, in molarity equation you have to study three types of equation. Okay, first of all, when you dilute a solution. Okay, second is when there is a reaction, and third when there is mixing of two solutions, whether both are acids or maybe both are bases. Okay, but both should be of same nature. Dilution, for dilution you know that अगर मान लो आपके पास there is a solution, okay, जिसकी मोलैरिटी है m1 और उसका वॉल्यूम है v1, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन. ओके, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी वो कैसे निकालेंगे? फॉर दैट वी हैव डायरेक्ट फार्मूला, ओके, विच वी कैन अप्लाई, दैट इज फॉर dilution. And here is it is m1 v1 equal to m2 v2, where m1 is representing molarity of concentrated solution, v1 is representing the molarity of volume of concentrated solution, m2 is representing molarity of dilute solution, and v2 is representing volume of डाइल्यूट सोल्यूशन. ठीक है, जैसे इनिशियली आपने m1 मोलैरिटी वाला सोल्यूशन, इनिशियली आपको इस सोल्यूशन की m1 पता है, वॉल्यूम कितना लिया वो भी पता है, बट आपने इसमें जब वाटर डाला उसके बाद आपने इसका जो टोटल रिजल्टेंट वॉल्यूम बनाया वो v2 बना लिया, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी मोलैरिटी आपको ये नहीं पता है. ठीक है, दिस यू हैव टू फाइंड. इफ इट मीन्स आउट ऑफ दी, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, आपको m1 पता है, v1 पता है, m2 नहीं पता, v2 पता है, you can find m2 very easily. Okay, so this is the importance of molarity equation for dilution. Similarly, next type of molarity equation is molarity equation for reaction. Okay, when there are two reactants which are reacting, okay, this at that time this equation is applicable. Okay, for example, there is a reaction between two reactants A and B. Okay, N1 number of moles of A is reacting with N2 number of moles of B, and they are giving products. N1 and N2 you will find from the balanced equation. Okay, you need to get a balanced equation. Okay, clear? So at that time this equation is valid. Okay, where M1 V1 and N1 is representing the quantities for A, where M2 V2 and N2 is representing the quantities for B. Okay, for example, M1 is molarity of reactant A, M2 is molarity of reactant B, V1 is volume of reactant A, V2 is volume of reactant B, and N1 is the coefficient of reactant A in the balanced equation, and N2 is the coefficient of reactant B in the balanced equation. Okay, at that time if you want to calculate how much volume of B is required to neutralize M1 molarity solution of A having volume V1, then you can apply this equation. You will simply get your answer of M2. Okay, or you will, if you know M2, then you will simply get the answer of V2. Okay, I will solve some numerical regarding this in my next slide. And next last is for mixing. Okay, if you are mixing two acid solution or two basis solution, then m1 into v1 one solution, m2 into v2 second solution. Okay, this is for second solution. Okay, when you mix these two and get resultant solution, and for that resultant solution molarity will be m3 and volume will be v3. If you don't know molarity of this, then you can calculate m3, but you know v3, you can imagine it easily. Okay, so at that time you can apply this formula for mixing. But one thing to mention here is that both should be acids or both should be bases. Okay, जिनका आप मिक्सचर बना रहे हो या तो दोनों एसिड हो या तो दोनों बेस हो. ओके, नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन. नॉर्मेलिटी इक्वेशन चाहे आपको डाइल्यूशन के लिए लगानी पड़े चाहे आपको रिएक्शन के लिए लगानी पड़े, यू आर अप्लाई गोइंग टू अप्लाई n1 into v1 equal to n2 into v2. This is for one solution and this is for the second one. Okay, क्लियर? दोनों के लिए आपको चाहे यहाँ पे n1 और n2
यहाँ डिनोमिनेटर में N1 और N2 नहीं आते, बिकॉज नॉर्मेलिटी जो है उसमें जो वैलेंसी फैक्टर होता है, यू नो वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर जो होता है रिएक्टेंट्स का, या मान लो, हाँ क्योंकि रिएक्टेंट्स में इस रिएक्शन के लिए आना था आपके पास N1 और N2, ठीक है। जो रिएक्शन के लिए इक्वेशन आती है वहीं पे N1 N2 आता है, वो ऑलरेडी एडजस्ट किया होता है, दैट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड, सो दैट्स वाई फिर यहाँ पे आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में N1 और N2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, clear? So this is normality equation, you have to remember these equations. Clear? Now we will solve some numericals based on these equations as well as concentration terms. Okay, now first numerical is what volume of 20 molar H2SO4 solution is required to prepare 10 molar H2SO4 solution 100 ml. आपने क्या करना है, आपने एक H2SO4 का सोल्यूशन बनाना है, कितना, जिसकी मोलैरिटी हो 10 मोलर एंड वॉल्यूम उसका बनाना है आपने 100 ml, बट यू हैव इक्विप्ड विद, आपके पास है क्या, 20 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ओके, तो उसका कितना वॉल्यूम लें, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस इज टेकन, सो दैट बाकी उसमें वाटर ऐड करके यू विल मेक 10 मोलर 100 ml H2SO4 सोल्यूशन। ये आपके पास सिचुएशन है, तो यहाँ पे डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट ही लगेगा। इट मीन्स दैट्स इट, M1V1 इक्वल टू M2V2, ये कंसनट्रेटेड मान लिया, ये डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का कितना वॉल्यूम लगेगा यू डोंट नो, यू टेक इट एज V1 बट इट्स मोलैरिटी इज 20, और डाइल्यूट का कितना बनाना है फ्रॉम दैट कंसनट्रेटेड, इट मीन्स डाइल्यूट आपने 10 मोलर मोलैरिटी वाला बनाना है एंड इट्स वॉल्यूम यू हैव टू प्रिपेयर इज 100 ml। सो फ्रॉम दिस you will calculate V1 equal to 50 ml. It means you have to take 50 ml of 20 molar H2SO4 solution and dilute it up to 100 ml by adding water. By adding water. मतलब 50 ml आपके पास, आपने क्या करना है, 50 ml ऑफ H2SO4 लेके, क्लियर, आपने बाकी उसमें पानी ऐड करके उसको कितना कर देना है, वॉल्यूम को 100 ml। तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, हम इसका मतलब तो ये हो गया 50 ml लेके उसमें 50 ml वाटर डाल देना है, पानी डाल देना है, नहीं, क्योंकि जब आप एसिड की डाइल्यूशन होती है तो थोड़ी बहुत एक्सपेंशन भी होती है H2SO4 की, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 50 ml वाटर ही लगेगा। तो इसलिए इसको ऐसे बोलना है कि यू हैव टू टेक 50 ml ऑफ H2SO4 एंड देन यू हैव टू ऐड वाटर until unless the volume of the solution become 100 ml। वो आपने साथ साथ में मेजरिंग सिलेंडर पे देखते रहना है 100 ml वाला मार्क, जैसे वो हो गया 100 ml, इट मीन्स दैट इज़ योर 10 मोलर H2SO4 सोल्यूशन 100 ml। ओके, क्लियर। इसका मतलब ये नहीं होता कि 50 ml वाटर लगेगा, कि 50 ml H2SO4 लेके उसमें 50 ml वाटर डाल दो, नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन भी होगी जब उसकी डाइल्यूशन होगी ना वाटर ऐड होने की वजह से, तो H2SO4 थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी करेगा और कई कंप्रेस भी कर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 50 ml वाटर ही लगे, 50 ml से ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच सोल्यूशन यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, क्लियर, सो दैट्स इट। इसलिए हम ये वाले लाइन यूज़ करी मैंने, टेक 50 ml ऑफ 20 मोलर H2SO4 solution and dilute it up to 100 ml। okay, now second, calculate the normality of solution obtained by mixing 100 ml of 0.1 molar H2SO4 with 100 ml of 0.1 molar NaOH। ठीक है, ml क्यों बोला, cc का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को ही तो ml बोलती हैं, क्लियर। इसमें क्या हुआ, आपने 0.1 मोलर H2SO4 लिया 100 ml, उसके साथ आपने 0.1 मोलर NaOH लेके 100 ml मिक्स कर दिया, पर ये तो एसिड और बेस है तो इसमें मिक्सिंग वाला फार्मूला नहीं लगना है, ये वाला, दिस फार्मूला नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, ठीक है। तो अब आप बोलो कि सर ये ऐसे कैसे, अब क्या कैसे करेंगे इसको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन, कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। सो एज वी नो दैट H2SO4 react with NaOH, there is neutralization, थोड़ी बहुत न्यूट्रलाइजेशन तो होगी ना, जितना NaOH डाला उसके अकॉर्डिंग H2SO4 का थोड़ा बहुत अमाउंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड यू हैव टू फाइंड रेस्ट ऑफ H2SO4 लेफ्ट, कि कितना H2SO4 बच चुका है, ये आपको फाइंड आउट करना है। देर इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 सम, not all but some H2SO4 is going to get neutralized with this 100 ml of 0.1 molar NaOH। कितना होगा, this is how to calculate how much H2SO4 is reacted, you know that H2SO4 has molarity 0.1 molar and NaOH has molarity 0.1 molar, okay, its 100 ml is used for neutralization, you don't know how much H2SO4 is getting
neutralized. So here we take x, okay, and this is the overall equation, neutralization equation for H2SO4 and NaOH reaction. So you can apply molarity equation, that is equal to m1 v1 by n1 इक्वल टू m2 v2 by n2. ये H2SO4 के लिए, ये NaOH के लिए. ओके, फॉर H2SO4 n1 इज 1 एंड n2 इज 2. ओके, क्लियर. m1 आपको पता है 0.1 मोलर H2SO4 का. वॉल्यूम कितना न्यूट्रलाइज हुआ वो नहीं हमें पता. टोटल कितना है 100 ml है वो हमें पता है, बट कितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसकी वजह से वो नहीं हमें पता, वो हम पता लगाएंगे. ठीक है, तो आपके पास दिस इज टेकन एज x. और सिमिलरली NaOH 0.1 मोलर है, उसका वॉल्यूम 100 ml और N2 कोफिशिएंट 2. ओके, बाय सॉल्विंग दिस यू कैन फाइंड आउट x. x इज 50 ml, मीन्स 0.1 मोलर का 50 ml जो है दैट इज न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ 0.1 मोलर 100 ml NaOH. ओके, इट मीन्स 50 ml न्यूट्रलाइज हो गया इसका H2SO4 का. बचा कितना 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 लेफ्ट है. ओके, क्लियर. ये और 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 न्यूट्रलाइज्ड हो गया. ओके, सो जो लेफ्ट है, ओके, ये जो आपके पास मिक्सचर बना जिसमें आपने H2SO4 और NaOH मिक्स करा है, ओके, इस मिक्सचर में न्यूट्रलाइज होने के बाद बचा क्या H2SO4. कितना बचा 50 ml ऑफ 0.1 मोलर. इट मीन्स आपके पास ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है दैट इज अ एसिड. ओके, अब तो H2SO4 कितना बचा 50 ml ऑफ 0.1 मोलर बच गया. सो ऑन मिक्सिंग आपको पता है कि मिक्सिंग करने पे अभी जब ये आपने H2SO4 और NaOH का मिक्सचर बनाया है, रिजल्टेंट मिक्सचर कितना होगा 200 ml, क्योंकि 100 ml इसका वॉल्यूम था, 100 ml इसका वॉल्यूम था. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml होगा ना, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट तो आप वैसे देखने से पता लगेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 200 ml, क्योंकि 201 हो जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे. सो ऑन मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 200 ml. ओके, तो अब हम ये केस ना मान लें कि जो H2SO4 लेफ्ट है, क्योंकि इतना बचा हुआ है, ठीक, H2SO4 लेफ्ट है, उसको वाटर डाल के आपने 200 ml कर दिया, और अब आप उसकी निकालना चाहते हो कि जो रिजल्टेंट बना आफ्टर डाइल्यूशन तो वो कितनी मोलैरिटी का बना. इसको ऐसे मान के चल पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास जो H2SO4 सोल्यूशन है, ठीक है, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर है. ओके, इतना बचा है, बट अब उसका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है, जो मिक्सचर जो आपने बना दिया, उसका रिजल्टेंट वॉल्यूम 50 ml तो है नहीं, दैट इज 200 ml. तो हम इसको एज अ डाइल्यूशन वाला मान के चलें कि इस ऐसे सॉल्व हो जाएगा. इट मीन्स अप्लाइंग डाइल्यूशन इक्वेशन टू द लेफ्ट H2SO4, दैट इज m1v1 इक्वल टू m2v2. क्लियर. जो आपके पास कंसंट्रेट जो डाइल्यूट सोल्यूशन है M2, उसका आपको M2 नहीं पता, यू डोंट नो इट्स मोलैरिटी. ओके, क्लियर. दिस इज अननोन. V2 यू नो, हाउ मच is that 200 ml. M1 you know, how much is that 0.1 molar. V1 you know 50 ml, which is the volume left of H2SO4, which is not reacted with NaOH. Okay, so you put out the value. So from this M2 is calculated, that comes out to be 0.025 molar. It means जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा, जो H2SO4 और NaOH के का मिक्सचर बनाया आपने, दोनों का 100 ml लिया, दोनों का 100 ml लिया था ना, 0.1 मोलर NaOH लिया था और 0.1 मोलर H2SO4 लिया था, और दोनों का जो रिजल्टेंट बना ये 200 ml मिक्सचर, इसमें बचा क्या H2SO4, और उसकी कंसनट्रेशन क्या है इस सोल्यूशन में, जो मिक्सचर है उसमें कितनी कंसनट्रेशन है H2SO4 की 0.025 मोलर. ओके, क्लियर. तो ये आगे मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर. बट आपको तो उन्होंने क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा ही क्या था, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग. मिक्सचर की मोलैरिटी क्या है वो आ गई. नॉर्मेलिटी निकालना कोई मुश्किल बात है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी. एसिड है ना, तो उसके लिए बेसिसिटी होती है, और H2SO4 के लिए बेसिसिटी कितनी होती है, कितने H पॉजिटिव में रिलीज करता है ये 2. तो इट मीन्स बेसिसिटी इक्वल टू 2. मोलैरिटी कितनी आ गई रिजल्टिंग सोल्यूशन की 0.025 मोलर. तो 0.025 into 2, 0.05 molar is the molarity of resultant solution. That's it. Okay, so this is all about this question. Now the last question. Okay,
These questions are very important. This is your last question. What volume of 95% H2SO4? You have a H2SO4 solution which has percentage 95%, उसकी concentration 95% बताई हुई है, मोलैरिटी ना गिवन है, मोलैरिटी ना दे के उन्होंने क्या दे दिया है, परसेंटेज, मतलब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस तो करी है, परसेंटेज की फॉर्म में करी है. एंड व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4. आपने इसका कितना वॉल्यूम लेके, आप इसका कितना वॉल्यूम ले कि आपके पास आपने H2SO4 बनाना है कितना, 15% परसेंटेज वाला 100 ml, तो इसका कितना वॉल्यूम ले उसको बनाने के लिए, ये क्वेश्चन है. और उस वॉल्यूम में कितना वाटर ऐड करें, कितना मास ऑफ वाटर ऐड करें, ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के. सो एज टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4. तो इसको दो पार्ट में ही सॉल्व करेंगे. सबसे पहला पार्ट क्या है, पहले हम ये पता लगाएंगे कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ 15% सोल्यूशन. बट आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो परसेंटेज को आपस में डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की कनेक्ट करती हो. बट हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन तो है ना फॉर डाइल्यूशन, ये वाली मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन ये लग सकती है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है और जो सोल्यूशन आपने बनाना है उसकी कंसंट्रेशन जो परसेंटेज में प्रेजेंटेड है उसको आपने मोलैरिटी में लेके आना है. ओके, तो इट मीन्स फाइंड मोलैरिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन देन अप्लाई मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन. 95% का मतलब क्या होता है, 95 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. एंड 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा, सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 95% वाले की 1.85 ग्राम पर ml. तो 100 ग्राम अगर ऐसा सोल्यूशन लोगे तो उसके लिए अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी, ये लगाओ. तो 100 ग्राम ऑफ सच सोल्यूशन विल हैव वॉल्यूम 54 ml. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज दिस. ओके, तो इट मीन्स 95 ग्राम ऑफ, यही परसेंटेज का मतलब क्या निकाला था हमने कि 95 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो अब ऐसे बोल रहे हैं कि 95 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ सोल्यूशन. ओके, क्लियर, यही बनाना है इंटरप्रिटेशन. और 95 ग्राम ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 95 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास. H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.97 मोल. ओके, तो आपने 95% सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी थी, वो कैसे आएगी, जो आपने ये इंटरप्रिटेशन करी है इसी को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे मोलैरिटी निकालने के लिए. नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.97. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना आ गया, 54 ml बना था ना 100 ग्राम का वॉल्यूम, तो 54 ml का मतलब 0.054 लीटर. ये वैल्यू जब आपने पुट करी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो दिस कम्स आउट टू बी 17.95 मोलर. तो इट मीन्स जो 95% H2SO4 का सोल्यूशन है दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज दी 17.95 मोलर सोल्यूशन. सेम ही बात है, बस आपने यहाँ पे यूनिट परसेंटेज लिया है, वहाँ पे अब आपने यूनिट जो है वो मोलैरिटी कर दिया, उसके ही टर्म में उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो आती है वो आती है 17.95 मोलर. ओके, सिमिलरली इन द सेम मैनर ये आपने करना है खुद, मोलैरिटी ऑफ 15% H2SO4 आ जाएगी 1.68 मोलर. ओके, नाउ अप्लाई डाइल्यूशन इक्वेशन. आपने कौन सी वाली मोलैरिटी वाला बनाना है सोल्यूशन, 1.68. कितना बनाना है, 100 ml. कंसनट्रेटेड आपके पास कितना, कौन सी मोलैरिटी का अवेलेबल है, 17.95. उसका वॉल्यूम कितना लगेगा ये फाइंड आउट करना है ना, V1 यू हैव टू फाइंड आउट. तो V1 फाइंड आउट कर लो. V1 कितना आ गया, 9.4 ml. इट मीन्स 9.4 ml 95% वाले का ले लो, ठीक है. उसमें वाटर ऐड करते चलो जब तक उसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml नहीं आ जाता. जब 100 ml हो जाएगा तब जो H2SO4 का सोल्यूशन होगा दैट विल हैव परसेंटेज 15% ऑफ H2SO4. और अगर मोलैरिटी के टर्म में बोलना है तो 1.68 मोलर. ओके, क्लियर. सो दिस इज पार्ट 1 सॉल्व्ड. ओके, नाउ पार्ट 2. उन्होंने ये पूछा था कि व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कि कितना वाटर का मास ऐड करना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला था कि डाइल्यूशन का टाइम एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है तो आप वैसे ही नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं. अब हम ये देखेंगे कि वेट ऑफ 9.4 ml ऑफ 95% H2SO4 कितना होता.
ये जो हमने 9.4 ml लेना है 95% H2SO4 का, उसका वेट कितना होता है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम से मास निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास कम्स आउट टू बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है उसकी 1.85, और उसका वॉल्यूम कितना है 9.4 ml, उसका मास कितना आ जाएगा 17.31 ग्राम। ओके। और जो आपने डाइल्यूट वाला बनाया कितना बना लिया 100 ml, जो 100 ml 15% H2SO4 बनाया उसका मास कितना हुआ। 100 ml वाले की भी उन्होंने डेंसिटी में दे रखी है 1.10 ग्राम पर ml, तो उसका कितना आ जाएगा आपके पास वेट 100 ml का। सेम फार्मूला, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वो कितना आ गया 110 ग्राम। तो मतलब जो सोल्यूशन आपने रिजल्टिंग बनाना है वो 110 ग्राम है उसका वेट। ओके। और उसमें H2SO4 जो इनिशियली 95% वाला डाला होता है उसका वेट कितना होता है 17.31 ग्राम। तो बाकी वाटर ही ऐड करना पड़ेगा। ओके, मतलब 110 ग्राम में से 17.31 ग्राम तो वो H2SO4 का इनिशियल वेट आ जाएगा। बाकी जो वेट आया, ठीक है, दैट इज़ द वेट ऑफ वाटर एडेड। तो कितना आ गया वेट ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल टू 110 माइनस 17.31, दैट इज इक्वल टू 92.68 ग्राम। दिस इज द वाटर you added. Okay, this is the mass of water you added. So that's all about this numerical. Okay, so these are the three numericals which I found very important and logical also. So you have to solve these numericals, and you can also practice some of numericals from your NCERT textbook. Okay, so this is all about equations. Okay, this is how you can apply molarity equation and normality equation. Okay, that's it.